We are also honored to welcome the Honorable Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare, Shri Shivraj Singh Chauhan Ji, Professor Ramesh Chand, Member of Niti Aayog and Chairman of the Organizing Committee of the conference, Dr. Himanshu Pathak, Secretary DARE, Director General of ICAR and Co-Chair of the Organizing Committee of the conference, and Professor Martin Keim, President of the conference and Director at the Center for Development Research of the University of Bonn, Germany. As we commence the 32nd International Conference of Agricultural Economists, we again extend a heartfelt welcome to all of you. And please join us in welcoming our very versatile Prime Minister, Shri Narendra Modi Ji. I request the Honorable Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare, Shri Shivraj Singh Chauhan Ji, to kindly felicitate the chief guest. Ladies and gentlemen, Shri Narendra Modi Ji is one leader who holds agriculture in his heart, a champion of farmers' welfare and a visionary for Viksit Bharat at 2047, that is, developed India by our centenary year of independence, or our 100th year of independence. May I now invite Professor Ramesh Chand, member of Niti Aayog and chairman of the organizing committee of the conference, for the welcome address. It's a great honor and privilege to welcome the Honorable Prime Minister in the inaugural function of 32nd International Conference of Agriculture Economists. On behalf of the organizers, Fraternity of Agriculture Economists, and on my own behalf, it gives me immense pleasure to welcome Union Agriculture Minister Shri Shivraj Singh Chauhan Ji as guest of honor in this event. I also welcome Professor Martin Keim, Director, University of Bonn, Germany, and President of this conference, DG ICAR Dr. Himanshu Pathak, all delegates from across the globe and from India, and guests present in this function. Today is an important day for the community of agriculture economists of India, as this conference is being held in the country after a long gap of 66 years. The new generation of agriculture economists of India has been anxiously waiting for this opportunity. We are grateful to the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi Ji for his gracious presence that gives us a lot of inspiration. I feel happy to mention before the Honorable Prime Minister that the conference received overwhelming response. This seems to be partly due to the rising interest in the world to see how India is growing on the global scene under his leadership. More than 1,000 delegates are attending this one-week-long conference. This includes 734 delegates from over 70 countries across the globe. But gives us more satisfaction is that 41% registered delegates are women. I can say this conference will positively contribute towards the goal set by the Honorable Prime Minister of women-led development. The theme chosen for this conference, Transformation Towards Sustainable Agriculture Food System, is holistic as well as futuristic. Agriculture has been a key focus area of development strategy in India, and the country has achieved
historically highest growth rate of 5% during 7-year period from 2016-17 to 2020-23. According to World Bank data available in Bird Development Indicator, India achieved highest growth rate in GDP agriculture in the world in the last 10 years. The recent achievements and opportunities in agriculture are pointing to even higher role for agriculture in future development of India and the world. It seems pertinent to share that since the global financial crisis in year 2006-2007, agriculture has shown higher growth than non-agriculture sector at global level. The share of agriculture in world GDP has risen from 3.2% in year 2006 to 4.3% in recent years. Agriculture growth in last 15 years has saved many countries from economic collapse. Due to poor record of industry in pulling labor force out of agriculture, the onus of remunerative employment for large workforce still remain on agriculture. Sustainability issues and rising threat of climate change also indicate criticality of agriculture for survival of people and planet. All these changes necessitate fresh appreciation of role of agriculture in economic and human development and a renewed focus on agriculture at all levels. This conference will provide a strong evidence to prepare a roadmap for enhanced role of agriculture for development in the changing world. At the end, I once again welcome the Honorable Prime Minister in the inaugural function of this conference and also extend warm welcome to Honorable Agriculture Minister and all the participants. Thank you. Thank you, sir, for extending a warm welcome. It is my honor to invite Professor Martin Keim, President of the ICAE 2024, President-elect of International Association of Agricultural Economists, and Director at the Center for Development Research, to address the audience. Dear Prime Minister Modi, Agricultural Minister Chauhan, honorable guests and delegates, on behalf of IAAE, the International Association of Agricultural Economists, it's my great pleasure to welcome you to ICA 2024, our triennial flagship conference. It's great to have this in person again after 6 years now, because the last one conference was virtual. I'm also very glad that over 1,000 people from all over the world are gathering here, and not only that, we have a fabulous lineup of speakers. The program reads like the who's who of global agricultural economics, and I'm looking forward to this exciting conference. Prime Minister Modi, we're proud that you are inaugurating this conference, and we interpret this not only as a sign of courtesy, but also as a signal of the importance that you and your government attribute to agricultural development, food security, and international science cooperation. Your inauguration has a historical precedent. Our association is 95 years old. We're celebrating 100-year anniversary in 5 years from now. The first conference was held in 1929 in England. But every 3 years we are going to different places of the world, and it's the second time that we are here in India. In 1958, the conference was held in the city of Mysore, and it was inaugurated by Prime Minister Nehru. So thank you, Prime Minister Modi, for nurturing this tradition. Let me also thank the Indian Local Organizing Committee for hosting this conference, for providing a splendid and welcoming setting, and for the great cooperation over the last 2 years or so. That was fun. Let me say a few words and sentences about the conference theme, Transformation Towards Sustainable Agri-Food Systems. The title already indicates that we don't have sustainable food systems at present. We have widespread hunger and malnutrition around the world, seriously hampering development.
Our goal of a world without hunger will most likely not be achieved by 2030. Some forms of malnutrition are even on the rise. Climate change and geopolitical tensions are exacerbating the problems. And we cannot ignore that our food systems themselves are contributing significantly to the climate crisis and several other environmental problems. Without major changes in the way we produce, distribute, and consume food, none of the 17 SDGs can be achieved. This underlines the relevance of the broader topic. But it can be done. That's the good side. The title of our conference also implies that transformation is possible and that food and nutrition security within the planetary boundaries remains a realistic goal. What we need is strong science, good technologies, political determination, societal openness for change, and international cooperation. We are convinced that our profession of agricultural economists has a truly important role to play and can contribute in terms of doing the relevant science, addressing urgent questions, and coming up with recommendations of what type of policies are needed in order to steer our food systems towards more sustainable pathways. This is exactly what we will discuss in the coming days at this conference. I wish all of us a very fruitful and enjoyable conference. Thank you. Thank you, Professor Martin Keim. May I now request the Honorable Union Minister, Agriculture and Farmers Welfare, Shri Shivraj Singh Chauhan ji, to grace us with his address. भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, श्री रमेश चंद्र जी, कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट श्री मार्टिन केम जी, हिमांशु पाठक जी और दुनिया भर के अनेक देशों से पधारे हुए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, भारत की इस धरती पर मैं सबसे पहले आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि अभी बताया गया, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत की कृषि विकास दर लगातार दुनिया में सबसे ज्यादा बनी हुई है। हमने जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रयत्न किए हैं, उत्पादन बढ़े, लेकिन साथ में भारत की चिंता भी रही है कि वो उत्पादन सुरक्षित उत्पादन हो, मानव शरीर के लिए भी और धरती के स्वास्थ्य के लिए भी, मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए भी। हमारे प्रधानमंत्री जी की अभी चिंताएं हैं, केमिकल फर्टिलाइजर के अधिक उपयोग के कारण जो उत्पादित अन्न हो, फल और सब्जियां हो, उसके विपरीत प्रभाव मानव शरीर पर पड़ रहे हैं और लगातार सॉइल हेल्थ खराब हो रही है। इसलिए भारत अब प्राकृतिक खेती पर बल दे रहा है। हमारे सामने अनेकों चिंताएं हैं, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। पूरी तरह से भूख और कुपोषण समाप्त करना है, क्लाइमेट चेंज के खतरों से निपटना है, बढ़ते हुए तापमान के कारण घटता हुआ उत्पादन गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। आने वाले पीढ़ियों की भविष्य की भी हमको चिंता करना है। और आप सब जो इस क्षेत्र के अधिकारी विद्वान हैं, इस मंच पर विचार विमर्श के माध्यम से जो आज हमारे सामने समस्याएं हैं, उनके समाधान में जुटेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है आपके लगातार चिंतन से, मंथन से जो निष्कर्ष निकलेंगे, वो हमारी सतत खाद्य प्रणाली के लिए और कृषि के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। भारत की परंपरा है वसुदैव कुटुंबकम की, सारा विश्व एक परिवार है। और प्रधानमंत्री जी की चिंता केवल भारत के लिए नहीं है, विश्व के कल्याण के लिए है।
और इसलिए भारत की प्रतिबद्धता है कि हम न केवल खाद्य सुरक्षा को मजबूत करें, बल्कि इस धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित छोड़ें। इसमें अपनी तरफ से कृषि विभाग भी यहाँ कोई कसर नहीं छोड़ेगा। एक बार मैं फिर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Honorable Minister, for your enlightening words. As you all know, India is a mega diverse country which has a variety of ecosystems. Let us now take a look at a brief video showcasing the recent developments in Indian agriculture. We are the Indian farmers, fondly called Annadata. In line with our Honorable Prime Minister's vision, today we fulfill the world's need for milk, pulses, jute, spices, rice, wheat, cotton, fruits, vegetables and fish. हमारे किसानों ने हमें न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि आज उनकी वजह से हम निर्यात करने में भी सक्षम हो गए। Programs like From Seed to Market, One Nation, One Market, Per Drop, More Crop, Healthy Earth, Green Farm, One Nation, One Fertilizer have empowered the farmers. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana provides crop insurance cover to the farmers against natural calamities. So far, more than 120 million farmers have been provided compensation. PM Kisan program provides financial support to more than 110 million farmers. The International Monetary Fund has applauded the execution of this scheme, which is the world's largest direct benefit transfer program. On the initiative of Government of India, the United Nations declared 2023 as an International Year of Millets to promote the production of less water-intensive and nutritive crops at the global platform. The first Agriculture Deputies meeting under India's G20 presidency in Indore prioritized 4 areas: a G20 framework document to ensure global food security and nutrition, to address the alarming climate change issues. Emphasis is on enhanced research collaborations for sustainable agriculture with climate-smart approach, commitment for inclusive agri-value chains and food systems, and transforming the agriculture sector through digitalization. The government is promoting agri-startups, use of artificial intelligence, remote sensing, drones, and other digital technologies in agriculture, ensuring not only food security, but also nutrition security for the world. Let's make world where everyone gains. Ladies and gentlemen, it is now time for the address of our Honorable Prime Minister. We are deeply honored to invite Shri Narendra Modi ji to share his vision on transformation towards sustainable agri-food systems with the ICAE delegates. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के प्रेसिडेंट डॉक्टर मतीन कैम, नीति आयोग के सदस्य श्री रमेश जी, भारत और अन्य देशों के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, रिसर्च से जुड़े अलग अलग यूनिवर्सिटी के हमारे साथी, एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े एक्सपर्ट्स और स्टेक होल्डर्स, देवी और सज्जनों, मुझे खुशी है कि 65 साल के बाद ICAE की ये कॉन्फ्रेंस भारत में फिर हो रही है।
आप दुनिया के अलग अलग देशों से भारत आए हैं। भारत के 120 मिलियन किसानों की तरफ से आपका स्वागत है। भारत की 30 मिलियन से ज्यादा महिला किसानों की तरफ से आपका स्वागत है। देश के 30 मिलियन फिशरमैन की तरफ से आपका स्वागत है। देश के 80 मिलियन से ज्यादा पशुपालकों की तरफ से आपका स्वागत है। आप आज उस देश में हैं जहां 550 मिलियन पशु हैं। कृषि प्रधान देश भारत में, जीव प्रेमी भारत में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। फ्रेंड्स, भारत जितना प्राचीन है उतनी ही प्राचीन एग्रीकल्चर और फूड को लेकर हमारी मान्यताएं हैं, हमारे अनुभव हैं और भारतीय कृषि परंपरा में साइंस को, लॉजिक को प्राथमिकता दी गई है। आज फूड और न्यूट्रिशन को लेकर इतनी चिंता दुनिया में हो रही है, लेकिन हजारों साल पहले हमारे ग्रंथों में कहा गया है, अन्नम ही भूतानाम ज्येष्ठम तस्मात् सर्वौषधम उच्यते। अर्थात सभी पदार्थों में अन्न श्रेष्ठ है, इसलिए अन्न को सभी औषधियों का स्वरूप, उनका मूल कहा गया है। हमारे अन्न को औषधीय प्रभावों के साथ इस्तेमाल करने का पूरा आयुर्वेद विज्ञान है। ये पारंपरिक नॉलेज सिस्टम भारत के समाज जीवन का हिस्सा है। फ्रेंड्स, लाइफ और फूड को लेकर ये हजारों वर्ष पहले का भारतीय विजडम है। इसी विजडम के आधार पर भारत में एग्रीकल्चर का विकास हुआ है। भारत में करीब 2000 वर्ष पहले कृषि पराशर नाम से जो ग्रंथ लिखा गया था, वो पूरे मानव इतिहास की धरोहर है। ये वैज्ञानिक खेती का एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है, जिसका अब ट्रांसलेटेड वर्जन भी मौजूद है। इस ग्रंथ में कृषि पर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, बादलों के प्रकार, रेनफॉल को नापने का तरीका और फोरकास्ट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जैविक खाद, पशुओं की देखभाल, बीज की सुरक्षा कैसे की जाए, स्टोरेज कैसे की जाए, ऐसे अनेक विषयों पर इस ग्रंथ में विस्तार से बताया गया है। इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए भारत में एग्रीकल्चर से जुड़ी एजुकेशन और रिसर्च का एक मजबूत इकोसिस्टम बना हुआ है।
इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के ही 100 से ज्यादा रिसर्च संस्थान है। भारत में एग्रीकल्चर और उससे संबंधित विषयों की पढ़ाई के लिए 500 से ज्यादा कॉलेज है। भारत में 700 से ज्यादा कृषि विज्ञान केंद्र है, जो किसानों तक नई टेक्नोलॉजी पहुंचाने में मदद करते हैं। साथियों, भारतीय कृषि की एक और विशेषता है। भारत में हम आज भी 6 सीजन्स को ध्यान में रखते हुए सब कुछ प्लान करते हैं। हमारे यहां 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की अपनी खासियत है। भारत में अगर आप कुछ 100 किलोमीटर ट्रेवल करें तो खेती बदल जाती है। मैदानों की खेती अलग है, हिमालय की खेती अलग है, डेजर्ट ड्राई डेजर्ट की खेती अलग है, जहां पानी कम होता है वहां की खेती अलग है, और कोस्टल बेल्ट की खेती अलग है। ये जो डायवर्सिटी है, यही ग्लोबल फूड की सिक्योरिटी के लिए भारत को उम्मीद की किरण बनाती है। फ्रेंड्स, पिछली बार जब ICAE की कॉन्फ्रेंस यहां हुई थी, तो भारत को उस समय नई नई आजादी मिली थी। वो भारत की फूड सिक्योरिटी को लेकर, भारत की एग्रीकल्चर को लेकर एक चैलेंजिंग टाइम था। आज भारत एक फूड सरप्लस देश है। आज भारत दूध, दाल और मसालों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। भारत फूड ग्रेन, फ्रूट्स, वेजिटेबल, कॉटन, शुगर, टी, फ्रेम्ड फिश, इनका दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। एक वो समय था जब भारत की फूड सिक्योरिटी दुनिया की चिंता का विषय था। एक आज का समय है जब भारत ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, ग्लोबल न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, इसके सॉल्यूशन देने में जुटा है। इसलिए फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन जैसे विषय को डिस्कस करने के लिए भारत के अनुभव बहुमूल्य है। इसका बहुत बड़ा लाभ विशेषकर ग्लोबल साउथ को मिलना तय है। साथियों, विश्व बंधु के तौर पर भारत मानवता के कल्याण को सर्वोपरि रखता है। G20 के दौरान भारत ने वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर का विजन सामने रखा था। भारत ने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए लाइफस्टाइल यानी मिशन लाइफ का भी मंत्र दिया। भारत ने वन अर्थ, वन हेल्थ इनिशिएटिव भी शुरू किया। हम ह्यूमन, एनिमल्स और प्लांट्स की हेल्थ को अलग अलग नहीं देख सकते। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और फूड सिस्टम्स के सामने आज जो भी चैलेंजेस है, इनको वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर की होलिस्टिक अप्रोच के साथ ही निपटा जा सकता है। साथियों, एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी के सेंटर पे है। हमारे यहां करीब 90% परिवार ऐसे हैं जिनके पास बहुत कम जमीन है। ये छोटे किसान ही भारत की फूड सिक्योरिटी की सबसे बड़ी ताकत है। यही स्थिति एशिया के कई विकासशील देशों में है। इसलिए भारत का मॉडल
कई देशों के काम आ सकता है। जैसे एक उदाहरण के लिए सस्टेनेबल फार्मिंग का भारत में हम बड़े पैमाने पर केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं। इसके काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। इस साल के बजट में भी बहुत बड़ा फोकस सस्टेनेबल फार्मिंग और क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग पर है। हम अपने किसानों को सपोर्ट करने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं। भारत का बहुत जोर क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप से जुड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर है। बीते 10 सालों में हमने करीब 1900 नई क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी अपने किसानों को दी है। इसका लाभ भारत के किसानों को भी मिल रहा है। हमारे यहां राइस की कुछ वैरायटीज ऐसी भी है जिनको ट्रेडिशनल वैरायटीज के मुकाबले 25% कम पानी चाहिए। हाल के वर्षों में हमारे यहां ब्लैक राइस सुपर फूड के रूप में उभरा है। हमारे यहां मणिपुर, असम और मेघालय की ब्लैक राइस को इसकी मेडिसिनल वैल्यू के कारण पसंद किया जा रहा है। भारत से जुड़े अनुभव विश्व समुदाय के साथ शेयर करने के लिए उतना ही उत्सुक है। फ्रेंड्स, आज के समय में पानी की कमी और क्लाइमेट चेंज के साथ ही न्यूट्रिशन भी एक बड़ा चैलेंज है। इसका सॉल्यूशन भी भारत के पास है। भारत मिलेट्स का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, जिन्हें दुनिया सुपर फूड कहती है, और उसे हमने श्री अन्न की पहचान दी है। ये मिनिमम वाटर मैक्सिमम प्रोडक्शन के सिद्धांत पर चलते हैं। भारत के अलग अलग सुपर फूड्स ग्लोबल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम को एड्रेस करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। भारत अपने सुपर फूड की इस बास्केट को दुनिया के साथ साझा करना चाहता है। साथ ही भारत की पहल पर पिछले साल पूरे विश्व ने इंटरनेशनल मिलेट ईयर मनाया है। फ्रेंड्स, बीते एक दशक में हमने फार्मिंग को आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। आज एक किसान सॉइल हेल्थ कार्ड्स की मदद से ये जान सकता है कि उसे क्या उगाना है। वो सोलर पावर की मदद से पंप चलाता है और वेस्टलैंड में सोलर फार्मिंग से भी कमाता है। वो ई-नैम यानी भारत के डिजिटल एग्रीकल्चर मार्केट के द्वारा अपनी पैदावार को बेच सकता है। वो किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग करता है। वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से अपनी फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। किसानों से लेकर एग्री टेक स्टार्टअप्स तक, नेचुरल फार्मिंग से लेकर के फार्म स्टे और फार्म टू टेबल की व्यवस्था तक भारत में कृषि और उससे जुड़े सेक्टर्स लगातार फॉर्मलाइज हो रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में ही 90 लाख हेक्टेयर खेती को हमने माइक्रो इरिगेशन से जोड़ा है। हमारे इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम से भी खेती और एनवायरनमेंट दोनों को लाभ हो रहा है। हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, भारत में हम एग्रीकल्चर सेक्टर में डिजिटल टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं।
पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से एक क्लिक पर 10 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 30 सेकंड में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। हम डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। हमारे किसानों को रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगी और वो डेटा ड्रिवन डिसीजन ले सकेंगे। हमारी इस पहल से करोड़ों किसानों को फायदा होगा, उनकी आर्थिक स्थिति और बेहतर होगी। सरकार लैंड के डिजिटलाइजेशन का भी बहुत बड़ा अभियान चला रही है। किसानों को उनकी लैंड का एक डिजिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर भी दिया जाएगा। ड्रोन का उपयोग भी खेती में बहुत तेजी से प्रमोट हम कर रहे हैं। ड्रोन से होने वाली खेती की कमान महिलाओं को हमारी ड्रोन दीदियों को दी जा रही है। ये जो भी कदम है, इनसे भारत के किसानों का तो फायदा हो गया ही, इससे ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को भी ताकत मिलेगी। फ्रेंड्स, आने वाले 5 दिनों में आप सभी यहां खुलकर चर्चा करने वाले हैं। यहां मैं बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी, युवाओं की भागीदारी देखकर अधिक प्रसन्न हो रहा हूं। आपके आइडियाज पर सबकी नजर रहेगी। मैं आशा करता हूं कि इस कॉन्फ्रेंस से हम दुनिया को सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम से जोड़ने के रास्ते खोज सकेंगे। हम एक दूसरे से सीखेंगे भी और एक दूसरे को सिखाएंगे भी। साथियों, आप कृषि जगत से जुड़े हुए लोग हैं, तो एक और जानकारी आपके सामने रखना मुझे बड़ा मन करता है। मुझे पता नहीं है दुनिया में कहीं किसी किसान का स्टैच्यू हो। हमने दुनिया में सबसे ऊंचे स्टैच्यू के रूप में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की चर्चा सुनी है, लेकिन मेरे सारे कृषि जगत के लोगों को जानकर के खुशी होगी कि भारत में आजादी के आंदोलन में जिस महापुरुषों ने किसान शक्ति को जागृत किया, किसानों को आजादी के आंदोलन का मुख्य धारा में जोड़ा, वे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा भारत में है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से डबल उसकी ऊंचाई है और एक किसान नेता की है। और दूसरी विशेषता है कि ये जो स्टैच्यू बनाया गया है, तो भारत के 600,000 6 लाख गांवों से हर गांव में किसानों को कहा गया कि आप खेत में जिस लोहे के औजार का उपयोग करते हैं, वैसा अपने खेत में उपयोग किए हुए औजार का टुकड़ा हमें दीजिए। 6 लाख गांवों से खेतों में उपयोग किया गया लोहे का औजार लाया गया, उसको मेल्ट किया गया और दुनिया के सबसे ऊंचे एक किसान नेता के स्टैच्यू के अंदर उस खेत में उपयोग किए औजार का मेल्ट करके लोहा उपयोग किया गया। मैं जरूर मानता हूं कि इस देश के किसान पुत्र को इतना बड़ा सम्मान जो मिला है, शायद विश्व में ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा। मुझे पक्का विश्वास है आज यहां आप आए हैं तो जरूर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, विश्व का सबसे ऊंचा ये स्टैच्यू देखने के लिए आप आकर्षित होंगे। मैं एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।
है।